Good morning, my dear students. As you are aware, we were discussing the concept in the earliest cities. In this chapter, we have already discussed about the meaning of civilization. What are the four civilizations that were found in the world? These are our Indus Valley civilization. Second is our Chinese civilization. Third is our Egyptian civilization, and fourth is our Mesopotamian civilization. So these were the four civilizations that were found in the world. Among these four, we are discussing the very first civilization that is related to your chapter in the earliest cities, that is Indus Valley civilization, also known as Harappan civilization. In the previous lecture, we also discussed about the discovery of Harappan civilization, that how the different archaeologists discovered the Harappan civilization. We have already discussed about this civilization, about the different cities, that what are the special things, what were the special things that are very special in the context of the Harappan cities. I told you about the 5 things that were very famous or special for the Harappan cities. These are, the very first is the citadel. Citadels, these are the type of towns. So citadels, they were situated in the west direction. They were smaller but constructed on the higher areas. यानी कि जो citadel होते थे वो जो है पश्चिम दिशा में पाए जाते हैं, जो अगर हम साइज के अकॉर्डिंग देखें, उनके आकार के अकॉर्डिंग देखें तो छोटे होते थे, लेकिन ऊंची जगहों पर बनाए जाते थे। उनको citadel के नाम से जाना जाता है। सेकंड इज अवर लोअर टाउन। जो सेकंड आपका है दैट इज द लोअर टाउन। लोअर टाउन, they were situated in the east direction. They were larger but constructed on the lower places. ये जो आपके शहर हैं, ये शहर जो है पूर्व दिशा की ओर बनाए जाते थे। ये आकार में बड़े होते थे, लेकिन नीची जगहों पर, निचले जो स्थान है उन पर बनाए जाते थे। So these are the two types of the city. These are the two special thing about the city. Third thing is the Great Bath. I also told you about the Great Bath that was found in the Mohenjo-daro city. So I also told you about the construction feature of the Great Bath. Fourth thing is the fire altars. Our fire altars, they were found in the Kalibanga and the Lothal cities, where the sacrifices work or the worship work occurred. And fifth is the elaborate storehouses. Means there were the great storehouses were also found. So these were the 5 special thing about the Harappan cities. Very first is citadel, second is lower town, third is Great Bath, fourth is fire altars, and fifth is elaborate store houses. This concept we have already discussed. Now today concept. Today we are going to discuss about the houses, drains and the streets of Harappan city. In this slide, we will discuss about the houses of the Harappan cities, drainage pattern of the Harappan cities, and the streets of the Harappan cities. Houses were usually 1 or 2 stories high with rooms built around a courtyard with separate bathing area. यानी कि यहाँ पे जो घर बनाए जाते थे वो या तो 1 मंजिला होते थे या 2 मंजिला होते थे, 1 और 2 स्टोरी हाई। और इनके जो है, जो ये रूम्स, जहां पे ये रूम्स बनाए जाते थे, इन घरों के अंदर जो कमरे होते थे, उन कमरों के चारों ओर जो है आपका कोर्ट यार्ड होता था, आंगन होता था। यानी कि जब हम अपने घर में जो है रूम्स बनाते हैं, कमरे बनाते हैं, तो उनके आगे हम खाली जगह छोड़ देते हैं जो बिल्कुल ओपन एरिया होता है। सो दैट ओपन एरिया इज नोन एज कोर्ट यार्ड। उसको हम आंगन बोलते हैं। आजकल आंगन का जो सिस्टम है वो खत्म हो गया है, लेकिन आप अपने ग्रैंडफादर से पूछिए
उनके जो मकान होते थे उनमें कोर्टयार्ड होता था, खाली जगह होती थी, जिसको आंगन के नाम से जाना जाता है। मैनी सिटीज हैड कवर ड्रेन। दूसरी बात आती है ड्रेन्स की। ड्रेन मीन नालियां, कि नालियां कैसी बनाई जाती थी। मैनी सिटी हैज हैड कवर्ड ड्रेन। यहाँ पे जो नालियां बनाई जाती थी वो कवर्ड होती थी, यानी कि खुली नहीं छोड़ी जाती थी, उनको ऊपर से ढक दिया जाता था। These drain were provided with inspection hole to clean them. अब जैसे कि ये कवर्ड है, हो सकता है कि इनके अंदर कोई वस्तु जो है हिंड्रेंस का काम करे या बैरियर का काम करे, यानी कि कोई वस्तु की अगर इसमें रुकावट हो जाती थी, स्टेगनेंट हो जाती थी, तो उस स्टेगनेंट को हटाने के लिए इसमें जो है इंस्पेक्शन होल जो है वो बनाया जाता था, यानी कि एक होल जहां से जो है हम किसी भी चीज की जो है देख रेख कर सकते हैं, इंस्पेक्शन उसकी कर सकते हैं। तो नालियां जो होती थी कवर्ड होती थी और इंस्पेक्शन होल के साथ जो है वो आपकी बनाई जाती थी। Next is the streets. All three houses, drains and street were planned and built at the same time. यानी कि यहाँ पे जो आपकी स्ट्रीट्स होती थी वो आपकी जो है प्लान्ड होती थी घरों के मुताबिक और नालियों के मुताबिक। ये आपकी स्ट्रीट जो है प्लान्ड होती थी, नियोजित होती थी, एंड बिल्ट एट द सेम टाइम, और एक ही समय पे ये जो आपकी बनाई जाती थी, यानी कि हाउसेस, ड्रेन और स्ट्रीट ये एक साथ आपके बनाए जाते थे। So these are the special thing about the houses, drains and the streets. Next concept is life in the city. कि जो हड़प्पान सिटी के जो लोग थे उनकी लाइफ कैसी होती होगी, उनका जीवन कैसा होता होगा। The Harappan cities was a very busy place. कोई भी जो हड़प्पा का शहर था वो एक बहुत बिजी प्लेस होता था, व्यस्त स्थान होता था। There were people who planned the construction of special building in the city. कुछ जो है विशेष लोग होते थे जो विशेष प्रकार की बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करते थे शहर के अंदर। इस दे वर प्रोबेबली दी रूलर्स, वो जो होते थे हो सकता है कि शासक हो, यानी कि शासक के जो है शासक की जो बिल्डिंग होती थी वो सब लोगों से हटकर होती थी, स्पेशल होती थी। देयर वर स्क्राइब्स, वहां पे जो है स्क्राइब्स भी होते थे। स्क्राइब्स को अगर हम हिंदी भाषा में कहें तो लिपिक कहेंगे, यानी कि हु न्यू हाउ टू राइट, यानी कि जो लोग जानते हैं कि कैसे लिखा जाता है। आपने देखा होगा कि आप जब किसी भी भाषा को लिखते हैं या सीखते हैं, सो दैट लैंग्वेज हैज इट्स ओन स्क्रिप्ट। जैसे कि अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा की जो स्क्रिप्ट है वो है आपकी देवनागरी। इंग्लिश भाषा की बात करें तो रोमन, यानी कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी और अंग्रेजी भाषा की लिपि जो है वो जो आपकी जो है रोमन है, और ऐसे ही पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो आपकी गुरुमुखी। तो इस प्रकार से हर एक भाषा की अपनी अपनी स्क्रिप्ट होती है, अपनी अपनी लिपि होती है, यानी कि जिसके द्वारा आप समझते हैं कि भाषा में क्या कहा गया है, अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है बनाती है। सो देयर वर सम स्क्राइब्स, वहां पे कुछ स्क्राइब्स होते थे। व्हाट हु वर द स्क्राइब्स? पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, हु प्रिपेयर्ड सील्स, जो है ये जानते थे कि कैसे लिखना है, और वो जो लोग हैं वो क्या काम करते थे, सील्स को बनाने का काम करते थे। अब दो चीजें आपकी सामने आई हैं, स्क्राइब हु न्यू दी हाउ टू राइट। अब अगर हम हड़प्पान सिविलाइजेशन की बात करें, हड़प्पान सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है दैट इज द पिक्टोग्राफिक। वो कैसी स्क्रिप्ट आपकी? पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट आपकी जो है वो है, यानी कि पिक्टोग्राफी, पिक्चर्स जो है उसमें होती थी, पिक्चर्स को डिपिक्ट किया जाता था और उन पिक्चर को हम समझकर जो है हड़प्पान के बारे में ज्ञान लेते हैं। दूसरी बात यहाँ पे कही गई है सील्स। सील्स आपके लिए एक नया शब्द आया है कि सील्स क्या होती थी। अगर हम आज के टाइम के अकॉर्डिंग देखें, आजकल आपने देखा होगा कि जो बिजनेसमैन होते हैं, ट्रेड पर्सन जो होते हैं, जब वो अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, तो अपनी वस्तुओं का जो वो आदान प्रदान करते हैं, बिजनेस जब उसके साथ करते हैं, तो वो जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी वस्तुओं को भेजते हैं तो पैकिंग के बाद उसके ऊपर एक सील लगाई जाती है, एक मोहर लगाई जाती है, स्टैंप लगाई जाती है। तो वो जो स्टैंप होती है वो सील का काम करती है। उसके लिए आपके जो है अलग अलग चीजें जो है आजकल प्रयोग की जाती है। तो वो सील किस चीज का को प्रतिबिंबित करती है? वो इस चीज को प्रतिबिंबित करती है, इस चीज को दर्शाती है कि उस वस्तु के साथ किसी ने भी जो है रास्ते में छेड़छाड़ नहीं की गई है, उसको किसी ने भी रास्ते में खोलकर
नहीं देखा है। अगर बाय द वे सील आपको टूटी हुई मिलती है, क्रैक मिलती है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो वस्तु है उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। तो अगर हम सील्स को हम देखें, सील्स मे हैव बीन यूज्ड टू स्टैम्प बैग्स, जो बैग्स जो उस टाइम जो है आपके भेजे जाते थे, और पैकेट भेजे जाते थे कंटेनिंग गुड्स, जिनके अंदर जो है वस्तुएं होती थी, दैट वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उनके ऊपर जो है सील्स का प्रयोग किया जाता था। आफ्टर अ बैग वॉज क्लोज और टाइट, जब एक बैग को बंद किया जाता था या बांध दिया जाता था, a layer of wet clay was applied on the note, तो उस नोट के ऊपर, नोट मीन्स गांठ, हम गांठ बांध देते हैं, कई बार नोट लगा देते हैं, तो उस गांठ के ऊपर जो है वो क्या करते थे, वेट क्ले जो होती थी, गीली जो मिट्टी होती थी, चिकनी मिट्टी जो होती थी, क्ले जो होती थी, उसको वो अप्लाई करते थे, एंड सील वॉज प्रेस्ड ऑन इट, और उसके ऊपर सील को लगा देते थे। द इम्प्रेशन ऑफ सील इज नोन एज सीलिंग, और जो आपका इंप्रेशन वो जो छप जाता था वहां पे, उसको हम सीलिंग के नाम से जानते थे। आज भी हम जो है इसी पैटर्न को जो है यूज कर रहे हैं। तो सील जो है वहां पे आपकी जो है होती थी। बिसाइड देयर वर men एंड वीमेन, इन लोगों के अतिरिक्त, यानी कि रूलर्स के अतिरिक्त, स्क्राइब्स के अतिरिक्त, वहां पे जो है कुछ स्त्री पुरुष होते थे, क्राफ्ट पर्सन, शिल्पकार होते थे, मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग, जो तकरीबन जो है सभी प्रकार की वस्तुओं को बनाते थे, ईदर देयर इन देयर होम्स और वर्कशॉप, वो इन वस्तुओं को या तो अपने घरों में बनाते थे या अपनी वर्कशॉप में, कार्यशालाओं में बनाते थे, यानी कि जो उनकी कार्य करने की जगह होती थी वहां पे बनाते थे। सो दिस इज द लाइफ इन द सिटी, तो इस प्रकार का जीवन जो है वो शहरों में था। अब जो हड़प्पान सिटीज थे, दे वर द बिजी प्लेसेस, so what are the different craft work occur in these cities? So next concept is the new crafts in the city, कि शहरों में जो है कौन कौन से नए क्राफ्ट जो है, नई वस्तुएं जो थी वो थी। most of the things found in the Harappan cities are made of stone, ज्यादातर जो हड़प्पान सिटी में जो भी आपकी वस्तुएं होती थी वो किस चीज की बनी होती थी, स्टोन, पत्थरों की बनाई जाती थी। सेल्स, शंखों की बनाई जाती थी, आपने शंख देखा होगा, मंदिर में भी देखा होगा। तो सेल जो होता है ये ओशंस के जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पे आपका पाया जाता है, तो उनको भी जो है अलग प्रकार के आभूषण बनाने में जो है प्रयोग, या अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को बनाने में प्रयोग लाया जाता है। तो सेल्स की बनी होती थी, एंड मेटल्स, और तीसरी बात है मेटल्स, और अलग अलग धातुओं की बनी होती थी। कौन कौन सी मेटल यूज की जाती थी उस टाइम, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। उस टाइम जो है कॉपर, तांबा, ब्रॉन्ज, कांसा, गोल्ड, सोना, एंड सिल्वर, चांदी, यानी कि तांबा, कांसा, सोना और चांदी, इस तरह की वस्तुओं से, इस तरह की धातुओं से जो है वस्तुएं बनाई जाती थी। तो तीन प्रकार की वस्तुओं, तीन प्रकार से जो है, तीन प्रकार की अलग अलग जो है चीजों को यूज करके जो है वस्तुएं बनाई जाती थी। दीज वर द स्टोन, सेल एंड द मेटल। Copper and bronze were used to make tools, weapons, ornaments and vessels. जो कॉपर एंड ब्रॉन्ज, जो तांबा और कांसा होता था, उसका प्रयोग जो है टूल्स, अलग अलग प्रकार के जो है औजार बनाने में, यानी कि जो आपकी लाइफ को सिंपल बनाती है, टूल्स, इक्विपमेंट्स, उनको बनाने में किया जाता था। वेपन्स, हथियार बनाने में किया जाता था। ऑर्नेमेंट्स, आभूषण बनाने में किया जाता था। एंड वेसल्स, और यूटेंसिल, बर्तन बनाने में किया जाता था। यानी कि ज्यादातर ये वस्तुएं जो है यूज की जाती थी। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नेमेंट एंड वेसल्स। यहाँ पे जो है आपकी जो है गोल्ड और सिल्वर जो है वो भी जो है आपका जो है यूज किया जाता था, लेकिन उसको दो ही प्रकार से यूज किया जाता था। वन इन ऑर्नेमेंट्स, आभूषण बनाने के लिए, जो आज भी हम करते हैं, एंड वेसल, और बर्तन बनाने के लिए। आज भी हम जो है गोल्ड और सिल्वर को जो है दोनों ही प्रकार से प्रयोग करते हैं। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अराउंड 7000 ईयर एगो। सबसे पहले जो कॉटन का हमको एविडेंस मिला है कि सबसे पहले कॉटन कहाँ पे प्रोड्यूस की गई, तो वो कहाँ पे की गई थी, मेहरगढ़ सिटी। मेहरगढ़ जो है दैट इज द टाइप ऑफ सिटी दैट इज फाउंड इन दी हड़प्पान। तकरीबन आज से 7000 साल पहले
आपकी जो है कॉटन मेहरगढ़ में, जो आज के टाइम में जो है पाकिस्तान में आपका पाया जाता है, वहां पे आपकी जो है ग्रू करना स्टार्ट की थी। अब आपने यहाँ पे देखा होगा कि वो जो लोग थे स्टोन, सेल और मेटल का प्रयोग करते थे अलग अलग प्रकार के टूल्स, वेपन, ऑर्नामेंट और वेसल्स बनाने के लिए। तो ये जो कार्य है बेटा, वो कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति इस कार्य को नहीं कर सकता, यानी कि सभी व्यक्ति जो है इस कार्य को नहीं कर सकते। तो उनके लिए क्या था, उनके लिए जो है आपका जो है स्पेशल लोग चाहिए होते थे। इसलिए आपकी एक टर्म आती है बेटा स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट जो टर्म है वो आपकी यूज की जाती है। मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट, यानी कि ये जो वस्तुएं आपकी प्रयोग में लाई जाती थी, इनमें से जो ज्यादातर प्रोड्यूस की जाती थी वो स्पेशलिस्ट के द्वारा की जाती थी। नाउ अ क्वेश्चन इज क्लिकिंग इन योर माइंड, हु वर स्पेशलिस्ट? स्पेशलिस्ट, a specialist is a person who is trained to do only one kind of work, यानी कि स्पेशलिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक ही प्रकार के कार्य को करने में ट्रेंड होता है, प्रशिक्षित होता है। कौन होता है बेटा स्पेशलिस्ट? विशेषज्ञ। विशेषज्ञ कौन होता है? जो एक ही प्रकार के कार्य को करने में प्रशिक्षित होता है। जैसे कि कटिंग स्टोन, पत्थर को काटना। अब पत्थर को हर व्यक्ति नहीं काट सकता, उसके लिए एक स्पेशलिस्ट की आवश्यकता होती है। या ऑर्नामेंट्स बनाना, आभूषण बनाना, हर कोई व्यक्ति जो है ऑर्नामेंट्स को नहीं बना सकता, आभूषण को नहीं बना सकता, तो उसके लिए स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। पॉलिशिंग बीड्स, मोतियों के ऊपर जो है पॉलिश करना, वो हर एक व्यक्ति के बस का कार्य नहीं है। और ऐसे ही आपका जो है कार्विंग सील्स या सील्स की बनावट को तैयार करना, वो भी हर एक व्यक्ति के बस का कार्य नहीं है। यानी कि कुछ विशेष व्यक्ति जो हैं विशेष प्रकार का कार्य करने में सक्षम होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, तो वो स्पेशलिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से जो भी चीजें जो हैं आपकी विकसित की जाती है वो स्पेशलिस्ट लोगों के द्वारा ही की जाती है। हैव ए लुक ऑन दिस पिक्चर हियर। यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जो मूर्तियां बनाई गई है, कैन यू इमेजिन दैट दीज pictures can be constructed, can be carved out by any people? No, ये किसी भी व्यक्ति के द्वारा कार्ड आउट नहीं की जा सकती। इनके लिए स्पेशलिस्ट व्यक्तियों की जो आवश्यकता जो है वो पड़ती है। हैव ए लुक ऑन दिस पिक्चर। यहाँ पे आपने देखा होगा दिस स्कल्पचर हैज अ बियर्ड। इसकी जो है बियर्ड है, आपकी दाढ़ी रखी हुई है यहाँ पे। तो ये बियर्ड को जो आपका कार्ड आउट करने का कार्य है, ये कोई भी साधारण व्यक्ति इस कार्य को नहीं कर सकता। इसके लिए जो है स्पेशलिस्ट व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ये जितने भी ये जो कार्य किए गए हैं, दीज वर कार्व्ड आउट बाय द स्पेशलिस्ट, वो स्पेशलिस्ट के द्वारा किए गए। In search of raw material, as you are aware, there were the different things were produced in the Harappan cities. हरप्पान सिटीज में बहुत सी जो है आपकी जो है चीजों को जो है आपका कार्ड आउट किया जाता था, आपका जो है बनाया जाता था। तो इस तरह के अलग अलग चीजों को जो आपका बनाया जाता था, तो ये जो चीजें हैं उनके लिए रॉ मटेरियल, कच्ची सामग्री जो है कहां से मिलती थी? सो रॉ मटेरियल आर सब्सटेंसेस। रॉ मटेरियल क्या होता है बेटा आपका? दीज आर द सब्सटेंसेस, ये वस्तुएं होती हैं, पदार्थ होते हैं, दैट आर ईदर फाउंड नेचुरली, जो या तो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, और प्रोड्यूस, या इनको जो है प्रोड्यूस किया जाता है, उत्पादित किया जाता है, यानी कि इनका उत्पादन किया जाता है बाय फार्मर, किसके द्वारा? किसानों के द्वारा, और हर्डर्स या जो पशुओं को रखते हैं उनके द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, जैसा हमने लास्ट स्लाइड में देखा, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये आपने देखा होगा दीज आर दी मेटल्स, ये नेचुरली रूप से आपको मिलती हैं। तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल यानी कि गोल्ड और सिल्वर से आपने ऑर्नामेंट्स बनाए, आभूषण बनाए। सो आभूषण जो है, ऑर्नामेंट जो है, वो एक फिनिश गुड है, जो जिस चीज का आप प्रयोग कर रहे हैं। और गोल्ड और सिल्वर जब हमने नेचर से लिया तो वो रॉ मटेरियल था उस टाइम आपका। जैसे कि आयरन और आप जो है अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं, तो आयरन और उस टाइम जो है रॉ मटेरियल है, उसके द्वारा आप उसको डिजायरेबल फिनिश गुड में कन्वर्ट कर देते हैं कि उससे जो है विंडो बनानी है, या गेट बनाना है, या कोई सेल्फ बनानी है, या कोई इक्विपमेंट्स बनाना है, तो वो आपका फिनिश गुड होता है बेटा। ठीक है, तो ऐसे ही फार्मर प्रोड्यूस करता है। जैसे कि कॉटन क्लॉथ आप पहनते हैं, तो कॉटन जो पहले प्रोड्यूस की जाती है वो किसानों के द्वारा की जाती है, उसके बाद उसकी जो है प्रोसेसिंग होती है, फिर वो आपका फिनिश गुड में कन्वर्ट होता है।
ऐसे ही आपका बेटा हर्डर्स, जो हर्डर्स होते हैं पशुओं को जो रखते हैं, वो पशुओं के जो उत्पाद हैं, पशुओं के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचते हैं। जैसे कि मिल्क है, मिल्क आपका एक रॉ मटेरियल है, उससे जब आप अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को बनाते हो तो वो आपकी एक फिनिश गुड है। तो इस प्रकार से जो रॉ मटेरियल था उस टाइम में दो ही प्रकार से, और आज के टाइम में भी दो ही प्रकार से मिलता है, नेचुरली अकर्ड और प्रोड्यूस बाय द फार्मर्स और द हर्डर्स। These are then processed to produce finished good। उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग की जाती है, इसको बनाने की एक प्रक्रिया होती है, और इसको जो है डिजायरेबल फिनिश गुड में आपका डिवाइड करते हैं। दी हड़प्पन प्रोबेबली गोट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान। जो हड़प्पन जो थे उनको जो है कॉपर, जो तांबा था, वो कहां से मिलता था बेटा? राजस्थान से मिलता था। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि उनको रॉ मटेरियल कहां से मिलता होगा, अलग अलग वो वस्तुएं बनाते थे तो उनके लिए रॉ मटेरियल कहां से मिलता था? तो कॉपर कहां से मिलता था बेटा? उनको राजस्थान से मिलता था। टीन वॉज ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। और जो टीन थी, टीन को अगर आप कॉपर में मिलाएं तो ब्रोंज आपका बनता है। तो टीन जो मिलती थी उनको, वो कहां से मिलती थी आपको? उनको जो है अफगानिस्तान से मंगवाते थे, वो अफगानिस्तान से पाई जाती थी। ये ध्यान देने योग्य स्लाइड है बेटा आपकी, एक एक नंबर में पूछा जा सकता है। गोल्ड वॉज ब्रोट ऑल दी वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका। और जो गोल्ड है, जो सोना है, वो उनको कहां से मिलता था? कर्नाटका स्टेट से मिलता था। एंड प्रीसियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। और जो दूसरे जो प्रीसियस स्टोन थे वो उनको जो है गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से मिलते थे। तो इस प्रकार से अलग अलग जगह से उनको जो है अलग अलग मटेरियल जो है वो मिलते थे। कॉपर कहां से मिलता था बेटा? दे ऑब्टेन द कॉपर फ्रॉम द राजस्थान, टीन फ्रॉम अफगानिस्तान, गोल्ड फ्रॉम कर्नाटका, प्रीसियस स्टोन फ्रॉम गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। नाउ फूड फॉर पीपल इन दी सिटीज, यानी कि जो शहर के जो लोग थे उनके लिए फूड कैसे जो है आपका तैयार किया जाता था, या कैसे जो है उनको जो है खाना मिलता था, क्या प्रोसेस उसकी होती होगी। सम पीपल लिव्ड इन सिटीज। हड़प्पान में जो है लोग जो थे, हड़प्पान सिविलाइजेशन में लोग थे, कुछ लोग ऐसे थे जो शहरों में रहते थे। अदर लिव्ड इन कंट्री साइड, कुछ ऐसे थे जो शहरों से दूर रहते थे, यानी कि गांवों में रहते थे। हु ग्रो क्रॉप्स, जो गांवों में रहते थे, कंट्री साइड में जो रहते थे, दे ग्रू क्रॉप्स, वो फसलों को उगाते थे, एंड रियर्ड एनिमल, और पशुओं को पालते थे। A new tool, the plow, was used to dig the earth and plant the seed। हड़प्पान सिविलाइजेशन में हमको एक नया टूल मिला है, द नेम इज प्लो, हिंदी में कहेंगे हल। यानी कि उनको हल मिला है। आप अपने ग्रैंडफादर से पूछ के देखिएगा कि हल का प्रयोग किस लिए किया जाता था। आजकल तो बेटा डिफरेंट आपके इक्विपमेंट्स आपके आ गए हैं, ट्रैक्टर वगैरह आ गए हैं, हैरो आ गई है आपकी, टीलर आ गए हैं आपके, जिसके द्वारा जो है खेतों को आपका डिग किया जाता है, यानी कि आपका टीलेज की जाती है। लेकिन पहले टाइम में अगर हम आज से जो है 30-40 साल पहले की बात करें तो उस टाइम जो है बैलों का प्रयोग करके हल चलाया जाता था। आपने एक फेमस सॉन्ग सुना होगा, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। तो ये जो सॉन्ग है बेटा, ये उपकार मूवी का सॉन्ग है। उसमें भी बेटा आपका जो है यही दिखाया गया है कि कैसे किसान जो है बैलों का साथ लेकर, बैलों की सहायता से जो है हल चलाता है और फसलों का उत्पादन करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है आपका जो एक नया टूल मिला है, प्लो, हल, जिसके द्वारा मिट्टी को जो है, भूमि को जो है डिग किया जाता था, खोदा जाता था, एंड प्लांट दी सीड, और उसमें जो है बीजों को बोया जाता था। Some form of irrigation was used as this region does not receive heavy rainfall। और ऐसे रीजन जहां पे रेनफॉल नहीं मिलती थी या कम होती थी, ऐसे रीजन में जो है फसलों को इरिगेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती थी, यानी कि वहां पे जो है फसलों को पानी देने का प्रावधान भी हमको जो है जानने में आया। इन ड्राई months of month, the herds of animal were taken to greater distances in search of grass and water। और जब ड्राई समर सीजन आता था तो जो पशुओं का जो झुंड है उसको जो है बहुत लंबी दूरी पर लेकर जाया जाता था, किसकी तलाश में? ग्रास, घास की तलाश में, एंड वाटर, और पानी की खोज में। पानी और घास की खोज में जो है पशुओं को जो है बहुत लंबी दूरी, बहुत दूर दूर की जगहों पर भी लेकर जाया जाता था ड्राई सीजन में। So these are some particular things about the Harappan cities or Harappan civilization.
Now we are going to discuss about a major city of the Harappan civilization, that is the Dholavira. My dear student, as you are aware, there are many Harappan cities that we found after the excavation. Two major cities, you are well aware about these. These are the Harappa and the Mohenjo-daro. Except this, you are also well aware about the Lothal and Kalibanga, where the fire altars were found. Except this, there were also some other cities that are very famous in the present time also. These are our Ropad in Punjab. This is also the example of the Harappan city. Ropad in Punjab, Lothal in Gujarat, Banwali in Haryana, Alamgirpur in UP, and two recent sites. These are Rakhigadi in Haryana and Dholavira in Gujarat. These were the famous Harappan cities that were found after the excavation. So in this slide, we are going to discuss about the Dholavira. So Dholavira, this is the Harappan towns in the Gujarat. The city of Dholavira was located on Khadir Bet in the run of Kutch. जब आप अपनी बुक में गुजरात का मैप देखेंगे बेटा, जो आपका जो है सेकंड पेज पर ही आपका दिया गया है, तो वहां पे आपको देखने में मिलेगा कि जो रन ऑफ कच्छ है, यानी कि जो नीचे का जो आपका रीजन है जहां पे आपका ओशंस आपका स्टार्ट होता है, अरेबियन सी आपका स्टार्ट होता है, तो रन ऑफ कच्छ का जो रीजन है वहां पे एक जगह है बेटा खदीर बे, वहां पे आपका धोलावीरा सिटी जो है वो मिला है. What are the features of the Dholavira city? These are the this city was divided into 3 parts. ये जो आपका जो है 3 parts में divide है, and each part was surrounded with massive stone walls with entrances through gateway. इसकी खास बात ये है कि ये 3 पार्ट में डिवाइड है. हैव अ लुक ऑन दिस पिक्चर. ये जो पिक्चर आप देखेंगे, इस पिक्चर में आप देखेंगे कि ये जो धोलावीरा सिटी है, ये आपका जो है 3 पार्ट्स में आपका डिवाइड किया गया है, और इनके चारों ओर जो है मैसिव, ग्रेट, बहुत बड़ी, विशालकाय स्टोन वॉल, पत्थरों की दीवार जो है बनाई गई है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, विद एंट्रेंसेस थ्रू गेटवे. और अगर आप इनके अंदर प्रवेश करना चाहते हैं तो वो केवल मेन गेट से ही आप जो है इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं. Other finds include large letters of the Harappan script that were carved out of white stones and perhaps inlaid in woods. और इसके अतिरिक्त आपकी जो है यहाँ पे जो है हरप्पान स्क्रिप्ट आपकी पाई गई है, जो पिक्टोग्राफी फॉर्म में आपकी, जिसपे बड़े बड़े लेटर्स आपके बने हुए हैं, जो व्हाइट स्टोन पे आपकी बनाई गई है, और उन व्हाइट स्टोन को जो है वुड के अंदर जो है लकड़ी के अंदर इनलेट किया गया है, यानी कि उनके चारों ओर जो है लकड़ी का फ्रेमवर्क है. The city of Lothal stood beside tributary of the Sabarmati in Gujarat. और धोलावीरा के साथ साथ एक और गुजरात में आपका शहर मिला है जिसको लोथल के नाम से आप जानते हैं, जहां पे फायर ऑल्टर्स भी आपकी मिली हैं. वो कहां पे मिला है? आपका साबरमती की ट्रिब्यूटरी के ऊपर आपका जो है गुजरात में ये मिला है. It was situated near areas where raw materials such as semi-precious stone were easily available. यानी कि ये जो शहर है, लोथल जो शहर है, वो उस जगह के पास मिला है जहां पे रॉ मटेरियल जो है, जिसमें कि सेमी प्रीशियस स्टोन है, इजीली अवेलेबल होते हैं. यानी कि यहाँ पे जो है सेमी प्रीशियस स्टोन आपके इजीली अवेलेबल पाए जाते हैं. There was also a store house in the city. इस शहर में जो है एक स्टोर हाउस भी आपका मिला है. Many seals and sealing have been found in the storehouse. और इस स्टोर हाउस में जो है बहुत सी सील्स और सीलिंग भी मिली है. यानी कि सीधा सा मतलब है बेटा कि यहाँ पे सेमी प्रीशियस स्टोन मिले हैं, तो ये जो स्थान था आपका, ये बिजनेस सेंटर रहा होगा, ट्रेड सेंटर रहा होगा, जिसके अंदर जो है स्टोर हाउसेज में मिले हैं, और उन स्टोर हाउसेज के अंदर जो है अलग अलग प्रकार की सील्स भी जो है पाई गई हैं. So these are the special thing about the Dholavira and the Lothal. Now, the mystery of the end. Now you are aware that the Harappan city, it was the prosperous civilization. But many of the archaeologists, scholars or historians, they were amazed or surprised about the mystery of its end. Means how the Harappan civilization get damaged, how it was devastated.
actually we not got the proper evidences of its devastation. But the different scholars, different archaeologists or historians, they have some prediction about the mystery of its end. So what are these? Have a look here. Around 3900 years ago, we find the beginning of a major change. तकरीबन जो है 3900 साल पहले यहाँ पे जो है मेजर चेंज जो है देखने को आया, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, दैट इज 4700 BC टू 3900 BC। सो 4700 BC टू 3907 BC आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन का पीरियड है। तो 3900 BC के आसपास जो है यहाँ पे मेजर चेंजेस आपके आए। क्या क्या चेंजेस आए बेटा? पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज, बहुत से लोगों ने जो है शहरों में रहना बंद कर दिया। द ड्रेनेज द गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट, और जो गलियां थी वहां पे जो है गार्बेज, कूड़ा करकट, पाइल्ड अप, पाइल्ड का मतलब होता है ढेर लगना, कूड़ा करकट के ढेर लग गए। द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन, और जो ड्रेनेज सिस्टम था वो टूट गया। लेस इंप्रेसिव हाउसेज वर बिल्ट, और इस समय में यानी कि 3900 के आसपास जो है यहाँ पे जो मकान भी बनाए गए तो वो बहुत कम इंप्रेसिव थे, यानी कि इतने मैसिव नहीं थे, इतने मैग्निफिसेंट नहीं थे जैसे कि पहले टाइम में बनाए गए थे। Some scholars say that the reason for this change was drying up of rivers, and some says it was due to deforestation. तो अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि ये जो डिवास्टेशन हुआ या हड़प्पा संस्कृति का जो ये विनाश हुआ, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सॉलिड एक भी नहीं है बेटा, वो केवल उनकी अजप्शन है, उनकी प्रिडिक्शन है। कई लोगों को लगा होगा कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हो सकता है कि वहां की जो नदियां हैं वो सूख गई हों, वहां पे सूखा पड़ गया हो, अकाल पड़ गया हो, ड्रॉट हो गया हो। सम सेज दैट इट वाज ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, कई लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि वहां पे डिफोरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो गया हो, यानी कि पेड़ पौधे सारे नष्ट हो गए हों और इस वजह से नदियां सूख गई हों, बरसात ना हुई हो, ड्रॉट हो गया हो, और वो जो सभ्यता संस्कृति है वो आपकी डैमेज हो गई। कई लोगों का ये भी विचार है कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हो सकता है कि वहां पे नदियों में बाढ़ आ गई हो, फ्लड आ गई हो, फ्लड में अकर देयर, और बाढ़ आने की वजह से जो वहां की जो सभ्यताएं और संस्कृति है, जो हड़प्पन सिटीज हैं, वो डैमेज हो गए हों। जैसे कि परहैप्स यू वॉच्ड अ मूवी मोहनजोदारो, मोहनजोदारो आपने एक मूवी देखी होगी, उसमें लास्ट सीन अगर आप देखें तो उसमें यही बताया हुआ है कि कैसे वहां पे जो है आपकी फ्लड आ गई। तो हो सकता है कि ये भी एक रीजन हो कि वहां पे फ्लड आ गई हो और वहां का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया हो, डिवास्ट हो गया हो। सो देयर वर द डिफरेंट रीजन बिहाइंड दिस। न्यू सिटी अमर्ज अराउंड 1400 ईयर्स लेटर, जो नए शहर हैं वो तकरीबन आपके जो हैं 1400 ईयर्स लेटर के बाद जो है, तकरीबन जो है 1400 साल बाद जो है वहां पे इमर्ज हुए। वी विल डिस्कस इन दिस सिटी इन द नेक्स्ट chapter, that is the chapter number 5 earliest. In that we will discuss about the kingdoms, kings and early republics. So this is your chapter. This is enough for today. If you have still any confusion, any question, if you want to ask, you can ask me now. You have just 4 minutes for it. Thank you for listening me. Now you can ask me about your queries. Thank you beta, have a nice day. And this is your chapter, we have completed this chapter. Soon I will send you the question answer, terms and the assignment of this chapter. You have to write only NCERT question answer in your notebook, and the terms you have to learn all the chapter. I also sent you yesterday about these. So all the chapter terms and concept you have to learn. Assignment you have to find out yourself and learn, and only in the fair notebook you have to just write the NCERT questions answers. So this is enough for today. God bless you beta. Thank you. Have a nice day. Stay healthy beta.